رمضان کا چاند ایپیسوڈ 1۔ اس بار رمضان میں گرمی کچھ زیادہ ہی پڑنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بادل، بارش، ہوا سب جیسے ناراض ہیں، آتے اور تن من کو سرور دیے بغیر ہی چلے جاتے۔ باغ جامن اور ٹہلی کے پیڑوں اور رنگ برنگے پھولوں کے پودوں سے بھرا تھا۔ ہلکے کالے رنگ، گلابی، طرح طرح کے رنگوں کے پھول سے سجی بیلوں نے باغ کی اونچی چار دیواری کو ڈھانپا ہوا تھا۔ پورب کی طرف گیٹ کے قریب سے لے کر باغ کے درمیان میں بنی چھوٹی سی باہرہ دری تک، پھر وہاں سے تین طرف سفید پتھروں کی خوبصورت چادر بچھائی گئی تھی۔ اتر کی طرف مالٹو کا حصہ تھا جو فی الحال ہرے پتوں سے سجے پیڑوں پہ گھرا تھا، ورنہ تو سردیوں میں اس طرف کی بہت زیادہ رکھوالی کرنی پڑتی تھی۔ ہوا چلنے لگی تھی، جھونکوں نے تھکے ہارے تن کو نیند کی تھپکی دی اور خوبصورت سنہری آنکھیں بند ہونے لگی۔ دھپ، زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، ساتھ پڑی بانس کی لمبی سی چھڑی اٹھائی اور آواز کی دشا میں اندازہ کرنے لگی۔ آموں کے حصے میں دیوار کے بالکل قریب اس نے آسمانی کرتے کی جھلک دیکھ لی تھی۔ تیری تو چھلاوے کی طرح صرف 2-3 کچالے بھر کر وہ چھپنے کی کوشش کرنے والے کے قریب تھی۔ اللہ بازی معاف کر دے، او ہو، نہ جانے کس کی قسمت پھوٹی تھی جو گل پری کے ہاتھ لگا تھا۔ معاف کر دوں، سارا سال میں اور چاچا تم لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا۔ اس نے اور تیزی سے بانس کی چھڑی گھمائی۔ دیوار کے اس پار تیز دوڑتا قدموں کی آواز سنائی دی۔ پورا لشکر لے کر آیا تھا میرا ٹارزن، رک تجھے بتاتی ہوں۔ وہ بھاگ اٹھا، گل پری چھڑی سنبھالے اس کے پیچھے بھاگی۔ تب ہی مین گیٹ کا دروازہ کھلا۔ وہ لڑکا تیزی سے دروازہ کراس کر گیا۔ وہ بھی نکلنے لگی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے اس کی نازک کلائی تھام لی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، آج اس کی ٹانگیں توڑ کے دم لوں گی۔ وہ تڑپی۔ توبہ گل پری، تم تو پوری ہٹلر ہو، اب جانے بھی دو اس بیچارے کو، کتنا پیٹو گی۔ آنے والا اسے اندر کھینچ لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہاں تو کیوں نہ بنوں ہٹلر، میرے چاچا کا باغ ہے، ان مفت خوروں کا تھوڑی ہے۔ اس نے بازو سے ناک رگڑ کے صاف کی۔ طلحہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا گیا۔ آج آنے دو ابا کو، بات کرتا ہوں ان سے۔ یہ کیا جوان جہان لڑکی کو اکیلا باغ کی نگرانی پر چھوڑ جاتے۔ وہ وہیں پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آرام کر رہی تھی۔ تم تو جانتے ہو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس دنیا میں صرف چاچا ہیں جو میری مانتے ہیں۔ وہ ہاتھ چھاڑتے ہوئے بولی، کوئی اور بھی ہے جو صرف تمہاری مانتا ہے، مگر تم شاید سمجھنا نہیں چاہتی۔ طلحہ کا بوجھل لہجہ۔ گل پری دور مالٹو کے پیڑوں کے جھنڈ کو دیکھنے لگی۔ میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں کم سے کم میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ خیر، میری کتابیں لائیں۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ تم جانتی ہو میں تمہارا کام کبھی نہیں بھولتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، جتایا مت کرو ہر وقت۔ وہ منہ بنا گئی۔ تمہارے کمرے میں رکھ آیا ہوں، جا کر دیکھ لینا۔ اور اگر چاچی نے دیکھ لی؟ وہ پریشان ہوئی۔ پلنگ کے گدے کے نیچے چھپائی ہیں۔ اماں کم سے کم گدا اٹھانے کی تکلیف سے تو رہی۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، وہ خوش ہوئی۔ پھر میرا ایک کام کرو۔ طلحہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ چاچا شہر گئے ہیں، کام سے آنے والے ہوں گے۔ جب تک تم باغ کا دھیان رکھ لو۔ میں بس قسط وار ناول پڑھ کر واپس آئی۔ تیز تیز بولتی وہ اس کے دل میں اترنے لگی۔ اور اگر اماں نے تمہیں پھر 2-3 کام بتا دیے تو؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، کر لوں گی، تم فکر مت کرو۔ بس خیال رہے ایک آم بھی کوئی نہ چرانے پائے، ورنہ قیامت کے دن تم پکڑے جاؤ گے۔ اس بات پر طلحہ نے ایک دم سے قہقہا لگایا۔ گل پری نے کندھے اچکائے۔ فکر مت کرو، آم تو کیا ایک گٹھلی بھی نہیں جائے گی باغ کے باہر۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ گل پری مطمئن ہو گئی۔ تو پھر میں ناول پڑھ کر ابھی آئی۔ اس نے بانس کی چھڑی طلحہ کو پکڑائی اور بھاگ نکلی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چھڑی کو تکتا رہ گیا۔ کل افطاری میں کچھ زیادہ چیزیں بنا لینا۔ رحمت علی نے کندھے پہ پڑی سفید چادر سے گیلے ہاتھ منہ پوچھتے ہوئے سغرا بی بی کو ہدایت کی۔ وہ کس لیے؟
उम्मीद के मुताबिक उसका मुंह बन गया। जाफरी का बेटा आ रहा है विलायत से, उसके लिए। सीधा जवाब आया। कौन जाफरी? वही आपका दोस्त। हाँ, जाफरी उसके लिए किसी अच्छी लड़की की तलाश में है, जो हमारे गांव की ही हो और पढ़ी लिखी समझदार हो। मैंने तो तभी से उसे गुलपरी के बारे में इशारतन बात की है। उसने भी खुशी का इजहार किया है, बस लड़के को हमारा माहौल पसंद आ जाए। रहमत अली ने सामने रखी चंगेर से रोटी उठाते हुए कहा। सुगरा बीबी का तो मुंह खुल गया। आप इतने बेवकूफ़ हैं? वह बड़ी मुश्किल से बोलने के काबिल हुई। क्यों, क्या कर दिया ऐसा मैंने? रहमत अली उसी अंदाज में खाना खाते रहे। इतना अच्छा रिश्ता आया और आपको अपनी 2 सगी बेटियां ना याद रही, बस डायन याद रही। सुगरा बीवी की आवाज़ गम के मारे फटने को थी। अच्छा रिश्ता किसी अच्छी लड़की का तलबगार है। अच्छा रिश्ता किसी अच्छी लड़की का तलबगार है। मेरी बच्चियों में क्या बुराई है? वह तड़प गई। कोई काम तो सिखाया नहीं, सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती हैं, ऊपर से पढ़ाई भी अधूरी है। उन्होंने आईना दिखाया। काम भी सीख जाएंगी। गुलपरी को भी तो मैंने ही सिखाया है, तुमने नहीं। उस बेचारी को तो वक्त ने सब कुछ सिखा दिया। फौरन टोका गया। शायद इसीलिए जाफरी ने जैसे ही किसी अच्छी लड़की का कहा, उसका नाम आ गया मेरे लबों पर। और वैसे भी मेरा इरादा तलहा के लिए था, लेकिन वहाँ भी तुम्हें ही बहाना था। सो अब मामला बाहर का है और मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा। सो जो कहा है उस पर अमल करो। और हाँ, तलहा के कमरे के साथ वाला कमरा सेट करवा देना। वह बर्तन मेज पर रखकर आराम से लेट गए। सुगरा बीवी बेचैनी से उंगलियां चटकाने लगी। अब्बा, आप यूं किसी अनजान बंदे का घर में रहने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? सुगरा बीवी ने फिलहाल बात तला के कान में डाल दी थी। उन्होंने हर सूरत से इस तूफान का मुंह मोड़ना था, जो उनके बच्चों के फ्यूचर की एक अच्छी उम्मीद उनसे छीनने वाला था। तला फौरन बाप के पास आया था, जो जमीनों के हिसाब किताब में बिजी थे। किसने कह दिया तुमसे? वह अनजान आदमी है। यूँ समझो तुम्हारा सगा चचाजाद आ रहा है, उन्होंने मोहब्बत से बताया। अब्बा, समझने और होने में काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क मिटा देने में काफ़ी आसानी होती है बेटा, वरना गुलपरी के मामले को ही देख लो। तुम्हारी माँ उसमें और बेटियों में फ़र्क ना करती तो मुझे यूँ बाहर बहाना ना करना पड़ता। दलील ठोस थी। वह चुप रह गया। रहमत अली उठकर उसके पास आ गए। जाफरी की ख्वाहिश है कि उसका बेटा मेरे घर में रहे, यहाँ के माहौल को देखे और अपने लोगों को जाने, ताकि नए रिश्ते बनाने में वह सही फैसला खुद कर सके। जाफरी मेरा भरोसेमंद दोस्त और अजीज भाई है, सिर्फ इसलिए मैंने हामी भरी। और गुलपरी के बारे में मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ के रवैये की देन है। मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें बंद होते ही उस पे यह 4 दीवारी तंग हो जाए और वह किसी भी ऐरे गैरे से ब्याह दी जाए। वह उसे समझा रहे थे। आप मेरे बारे में भी तो सोच सकते थे बाबा, उसने शिकायत की। सबसे पहले यही सोचा था, लेकिन तुम्हारी माँ वह किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, गुलपरी को तुम्हारी बीवी की सूरत में। फिर जो रवैया तुम्हारी माँ ने गुलपरी के साथ रवा रखा था, और मेरा नहीं ख्याल कि वह दिल से इस रिश्ते पे राजी होगी। तभी मैंने उससे बात की। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ और मेरी ख्वाहिश के वाजिब जानकर वह अपनी ज़ात और इज्जत को पीछे डाल दे। उसकी बातों में वजन था, उनकी बातों में वजन था, और वह खुद भी कई बार उसे अपने दिल का हाल बता चुका था, मगर वह हमेशा उसकी बात टाल जाती थी, बदल जाती थी। वाकई जिस तरह का सलूक अम्मा ने उसके साथ कर रखा था, उसके बाद किस तरह वह उसके हक में फैसला कर सकती थी। ऐसे में बाहर से इस तरह का अच्छा रिश्ता वाकई गुलपरी के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होता। किस्मत जो बेहतरीन मौका दे रही थी। गुलपरी जैसी समझदार लड़की भला उसे कहाँ खोने वाली थी। वह मायूसी से बस सोचता चला गया। उफ अंकल, आपकी यह बेटी तो काफ़ी डरावनी है। दिन में अक्सर उसे 4 फीट लंबी डंडी के साथ ही देखा है। ओसामा की बात पर सब हंस दिए थे। दूर खड़ी मुर्गियों को दाना डालती गुलपरी बेखबर खड़ी थी। तलहा ने उदास सी नज़र उसके सादा ढके तन पे डाली। जब से ओसामा यहाँ आया था, वह घर में भी बड़ी सी चादर लेने लगी थी। बेटी कहाँ? यह तो मेरा बेटा है, बाजू है मेरा गुलपरी। रहमत अली के लहजे में गुरूर उमड़ आया।
और सुगरा बेबी का हलक तक कड़वा हो गया। वैसे सच कहूँ नेचर के बहुत करीब है आप लोग, बहुत खूबसूरत। मुझे तो यकीन नहीं आता कि बाबा इतनी खूबसूरत जगह रहते थे। मैं तो अब वापस जाकर बाबा को यहीं आने के लिए दबाव डालूंगा। अपनी पढ़ाई और काबिलियत से इस गांव की तरक्की के लिए काम करूंगा। ओसामा के लहजे में जोश बोल रहा था। रहमत अली और तलहा को वह सादा फितरत का लड़का बहुत पसंद आया। अचानक ही तलहा की नज़र गुलपरी पे पड़ी थी। वह हैरान सी ओसामा को देखे जा रही थी। तलहा उस पर से नजरें न हटा सका था। दस्तरखान के दरमियान में मिट्टी से बनी लाल रंग की परात धरी थी, जिसमें के पीके की एक रिवायती डिश सोबत पतले सालन की रोटी के खुश्क टुकड़े डुबोकर ऊपर से सुनहरे तेल की तह थी। परात के दरमियान में रोटी के ऊपर मछली मसाला लगा गोश्त और साथ सलाद और रायते के बर्तन रखे थे। एक प्लेट में घर से के बने सामी कबाब और लस्सी के साथ में पिसे हुए चावलों की खीर। इतना लजीज खाना आज से पहले मैंने कभी नहीं खाया। विदेशी खानों का आदी ओसामा देसी खानों के मिर्च मसालों से सू करने के बावजूद तारीफें किए बिना न रह सका। सभी मुस्कुरा दिए। यह सब तो गुल आपी ने बनाया है, खाना हमेशा वही बनाती है। अक्सा ने फौरन बताना फर्ज समझा। अम्मा इशारा करती रह गई। वाह हैरत है भाई, आप तो कमाल हो। और इस बार वह सीधे गुलपरी से मुखातिब हुआ था। तला ने चौंक कर पहले ओसामा की तरफ देखा जो गुलपरी को देखे जा रहा था, फिर उसने गुलपरी की तरफ निगाह की। वह खामोशी से इफ्तारी के बर्तन समेट रही थी। और आप भी अजीब हैं गुल, बल्कि अलग सी भी। क्या गांव की सब लड़कियां ऐसा सोचती हैं? इस उम्र में रहमत चचा ओसामा रहमत अली की तरफ मुड़ा था, जिनके होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट मचल रही थी। नहीं, सुगरा बीबी बोल उठी थी। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती बेटा, सिर्फ वही लड़कियां ऐसी होती हैं जो पैदा होते ही अपने माँ बाप को निगल जाएं। बेदर्दी की हद कर दी थी सुगरा बीबी ने। कोई भी बोलने के काबिल न रहा था। गुलपरी मुंह छुपा के चल दी थी। तलहा ने वैसे उसके गाल पे लुढ़कता आंसू साफ देख लिया था। वह बेबसी से होंठ काटता रह गया। आज मौसम खुशगवार था। ताज़ा सी हवाओं ने बादलों भरे दिन को और ज़्यादा खूबसूरती बख्श दी थी। वैसे भी इन 5 दिनों में तलहा की रहनुमाई में उसे रास्तों की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। बड़े फाटक का छोटा दरवाज़ा खोल के वह बाग में आया तो रिमझिम बारिश शुरू हो गई। रहमत अली को आवाज़ें देता वह आम के पेड़ों की तरफ आ गया, जिसके सामने ही बाहर दरी थी। रहमत चाचा, उसने दोबारा आवाज़ दी। कोई काम है उनसे? वह घर आराम करने गए हैं। जवाब मिला तो वह हैरान सा बाहर आसमान को झांकने लगा। कौन है वहाँ? उसे कोई दिखाई न दिया। मैं हूँ। सामने लगे आम के पेड़ के पत्तों ने हरकत की और ओसामा दंग रह गया। थोड़ी नीची मोटी डाली पे टेक लगाकर बैठी वह मुतमईन सी लड़की गुलपरी ही थी। उसका हर रूप निराला था। एक हाथ में किताब और दूसरों में आम के साथ 2 सुनहरी लाल आंखें उसे साफ देखे गईं। आपसे मतलब? साफ जवाब आया। रात सोई नहीं तुम? तलहा न जाने कब वहाँ आया था। गुलपरी नरम पड़ गई। नींद नहीं आई। सुबह उल्टी होने लगी और सरदर्द भी। वह साफ साफ बोली। तभी रोजा भी। उसकी आवाज़ में अफसोस था। इसलिए चुप कर आम खा रही हो? वह मुस्कुराया। गुलपरी सिर हिला गई। जाओ, घर जाकर आराम करो, मैं यहाँ हूँ। और वह खामोशी से आम फेंक के चल दी। इनके माँ बाबा गुल की पैदाइश के 1 साल के अंदर ही दोनों की मौत हो गई थी। ओह, तब ही सुगरा आंटी ओसामा जैसे सब समझ गया। कोई मनूस नहीं होता, सब कुदरत के काम है। लेकिन लोगों को कौन समझाए? तला को अफसोस था और शर्मिंदगी भी। वैसे सच बताऊं, मुझे आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओसामा ने उसकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहा। मुझे खुद, बल्कि मैं तो ख्वाहिश रखता हूँ कि आपसे ताल्लुकात बने रहें, इंशाअल्लाह। वह मुस्कुरा दिया। ओसामा पहले से ज़्यादा गुलपरी की तारीफ करने में लग गया था। कोई भी मौका होता उसकी तारीफ करने में कंजूसी नहीं करता। सुगरा चाची लाख बुराइयां करती, वह कोई ना कोई चुटकुला छोड़कर बात बदल देता। छोटी अक्सा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। फरा वैसे कम बोलती थी, ज़्यादातर अपने कमरे तक ही रहती। टीवी या मोबाइल, बस यही 2 काम थे उसके। बाहर क्या हो रहा है, अम्मा क्या सोच रही हैं, उसे कोई दिलचस्पी ना थी। इतना प्यारा लड़का हाथ से निकल रहा है। अरे मैं कहती हूँ बाप दुश्मन बन रहा है तो तुम खुद
तो अकल से काम लो। अभी भी वह ईयरफोन कानों में दिए बेफिक्री से लेटी थी कि अचानक ही अम्मा ने धावा बोल दिया। क्या है अम्मा? हाय हाय, मेरी मुकद्दर फोड़ बैठी। इधर वह मैसनी है, दो दो लड़कों को हाथ में किए बैठी है, और इधर मेरी वाली। तौबा करें अम्मा, हर वक्त गुल के पीछे पड़ी रहती हो आप तो। फराह को बुरा लगा। लो, अब इस पे भी जादू चढ़ गया उस मनहूस का। अम्मा ने कमर में जोर हाथ मारे। वह बेचारी तड़प कर रह गई। हक मार रही है तुम बहनों का। उसामा जैसा लड़का मुकद्दर से मिलता है तो यही तो मैं कह रही हूँ अम्मा, मुकद्दर में है तो कोई कैसे ले जा सकता है मुझसे। आप खुद को ना जलाएं। वह बाज ना आई। दो झापड़ और लगे। बेड से उतरते ही बनी। टीवी देख देख कर डायलॉग सीख गई है, मुझे पढ़ाएगी। ठहर जा, तुझे तो मैं बताती हूँ। अम्मा तो पीछे ही पड़ गई। वह अब्बा के कमरे की तरफ भागी। क्या सोच रही हो? नहर किनारे आम की जड़ों में पैर जमाए न जाने वह किन सोचों में गुम थी। तलहा की आवाज़ पे चौंक गई। उसामा के बारे में सोच रही हूँ। तलहा ने चौंक के उसको देखा। वह कितनी साफ दिल की थी, जो दिल में होता वही जबान पे। अच्छा, वैसे काफ़ी अच्छा बंदा है ना? वह उसे गौर से देखने लगा। गुलपरी की नज़रें दूर नहर में तैरती बत्तखों के जोड़ों पर जमी थी। उनके पीछे 4 बच्चे तैरने की कोशिश कर रहे थे। बार बार डुबकी लगाते, बैलेंस खो देते, और माँ या बाप कोई उन्हें प्यार से सीधा कर देता। अच्छा भी है और मैच्योर भी। हालांकि उस उम्र में लड़के काफ़ी फ्लर्टी होते हैं। संजीदा लहजे में जवाब आया। तलहा मुस्कुराया। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ तो नहीं? शोक काली आंखों में उदासी मुस्कुराई थी। वह उसे देखने लगी। तुम फ्लर्ट भी करते हो? पूछा गया। मैं समझा शायद तुम सोचती हो। वह कंधे उचका गया। तुम्हारे बारे में मैं इतना बुरा कभी नहीं सोच सकती। इतना अच्छा भी तो नहीं सोचा ना कभी, जितना इतने कम अरसे में तुमने ओसामा के बारे में जान लिया। वह नाराज था शायद, और गुल मुस्कुरा दी। तुम जल रहे हो, हक बनता है मेरा। तुम्हारे सामने मेरी पोजीशन क्लियर है। वह भी साफ दिल था। गुलपरी उठ खड़ी हुई। उसे देखकर तलहा भी। कभी तो किसी ख्वाब का सिरा थमा दिया करो। कहानी शुरू करने लगता हूँ, तुम दी एंड लगा देती हो। बदलाव अपने बस में नहीं है कि बीच की कहानी, किरदार, हालात सब अपनी मर्जी से बयान करूँ। तब तक शुरुआत और एंड के किस्से रहने दो। नरमी से कहती वह आगे बढ़ गई। उसकी सब्ज धानीदार चुनरी से किनारी की एक बूटी फूल न जाने कैसे उखड़कर कच्ची गीली मिट्टी पर गिर गई। तलहा ने वही बूटी उठाकर मिट्टी में जकड़ ली थी। जाफरी चाचा आ रहे थे। न जाने ओसामा ने उन्हें क्या सिग्नल दिया था कि उन्होंने अचानक ही रहमत अली को अपने आने की खबर दी। रहमत अली समेत उनकी दोनों बेटियां भी खुश थीं कि किसी के नसीब से सही उनके घर में भी खुशी के शादियाने बजेंगे। गुलपरी ने सब अल्लाह पर छोड़ रखा था और यूं मुतमईन थी जैसे फैसला उसकी पसंद के मुताबिक ही होना था। बेचैन था तो तला, उसे अपनी मंजिल खोने का डर सता रहा था। परेशान थी तो सुगरा, उन्हें गुलपरी की रोशन नसीब डरा रहा था। एक छत के नीचे रहने वाले लोग एक ही अल्लाह के बंदे। फितरत, सोच और चाहत सब की ऐसे अलग जैसे वाकई आपस में कोई रिश्ता ना हो। यही तो है मेरे सब सोने की रंग। कह दिया कि सब पानी खत्म हो जाने वाला तो फिर क्या था? हैरत या हैरानी? इबादतों की रात थी, रहमत की रात। जाफरी चचा आ गए थे। सारी रात जाग कर खुदा के सामने सर झुकाते रहे। लोग सारे सवाली रहे। किसी ने भी बगैर फायदे के लिए इबादत नहीं की। सब मांगने आए थे, दुआओं के लिए, ज़रूरतों के लिए नींद की कुर्बानी थी, किस्मत के लिए रोए थे, मुकद्दर की जीत के लिए दुआ की थी। रात ढलने लगी। खाकी बदन थकने लगा। आंसू सूख गए और हाथ और जबान थकन से चूर। न जाने किसके मुकद्दर में क्या कुछ बदला गया था। किसी की दुआएं रद्द हुई थी और किसी की दुआ कबूल। वक्त जल्द या देर सब दिखाने वाला था। रहमत अली सर झुकाए इंतजार में थे कि जाफरी कोई बात करें। उनके पुकारने पर उन्होंने सर उठाकर उनको देखा। ओसामा तेरा भी बेटा है ना? बेशक, मुझे तलहा की तरह ही प्यारा है। उन्होंने कबूल किया। उसने भी तुम्हारे नेक बेटे की तरह फैसला मुझ पे छोड़ा है। उसे इस घर का माहौल, तौर तरीके सब बहुत पसंद आ गए, इसलिए उसने आखिरी फैसला मुझ पर छोड़ा है। अब आखिरी फैसला तुमने करना है। तुम्हारी तीनों बेटियां मेरे लिए बराबर है। जिसके भी काबिल ओसामा को समझो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। किस कदर इज्जत भरा सवाल उठाया था जाफरी ने।
انہوں نے آخری میں بھی دوستی نبھا دی۔ رحمت علی بیکدار اٹھ کر ان کے